Bismillahirrahmanirrahim. My name is Afsanaz. My roll number is 18004 and the topic which I will present is air pollution puts children at high risk of diseases in adulthood. First of all, what is air pollution? Air pollution is a mixture of solid particles and gases in the air. Car emissions, chemicals from the factories, dust, pollen and mold spores may be suspended as particles. Types of air pollutants. It includes particulate matter. Particulate matter क्या है? Particulate matter ये solid और liquid particles का सम है which is suspended in the air. और ये क्या होता है? ये हेल्थ के लिए hazardous होता है. ओजोन O3 हाईली रिएक्टिव गैस है. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड लेड. Types of air pollution. It includes indoor air pollution and outdoor air pollution. As the name presents, indoor air pollution is dust, dirt, or gases in the air inside a building, such as your home or workplace, that harms us when we breathe in. Outdoor air pollution को हम ambient air pollution भी air pollution को हम ambient air pollution भी कहते हैं. इसके जो common sources हैं are emission caused by combustion processes from motor vehicles, solid fuel burnings and industry. While sources of indoor air pollution जो है बायोमास हैं, गैस एंड अदर फ्यूल्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, tobacco smoke, plastic furnishings, composites, wood products, textiles, building materials, insulation, carpet, paint, cleaning products, dust, mold, mites and viruses are included. Less commonly recognized sources में आते हैं combustion sources. Combustion sources are the particles made by burning of any fuel such as wood, natural gas or tobacco. Aerosolized products are the products which are packaged in self-dispensing pressurized container. इसमें स्प्रे प्रोडक्ट्स भी आती हैं और फोम प्रोडक्ट्स भी आती हैं. एयर फ्रेशनर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाउसहोल्ड डस्ट और एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स शामिल हैं. जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हैं उन्हें हम हार्मोनली एक्टिव एजेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे इंटरफेयर करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ और कैंसरस ट्यूमर, बर्थ डिफेक्ट्स और द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स काज करते हैं. ससेप्टिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स. Children are more susceptible than adults to the effects of air pollution because of their environmental, behavioral and physiological factors. इसके कुछ रीज़न हो सकती हैं. फर्स्ट रीज़न इज सम चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड engaged in physical activity, exposing them to larger doses of ambient air pollution. Ambient means outdoor air pollution. In some regions, mothers carry infants on their backs while cooking, exposing them to high concentrations of biomass fumes. Third one is breathe air nearer to the ground. Children are shorter than adults. They breathe air nearer to the ground and therefore exposing them to higher concentrations of most air pollutants. Hand to mouth behavior, and last one is the pica behavior. Pica is an eating disorder in which a person eats things which are not usually considered as food. तो चिल्ड्रन ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि फूड के तौर पे मतलब कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो जो फूड के तौर पे कंसिडर नहीं होती, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा चांसेस हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से एयर पोल्यूशन की डिजीज़ काज होने के. इसके अलावा हाई रेट्स ऑफ ब्रीथिंग, माइन्यूट वेंटिलेशन रेट्स रिलेटिव टू द बॉडी साइज, ineffective particle filtering in the nasal passage, increasing the dose received, smaller airways in children than adults, or underdeveloped detoxification systems. The underdeveloped detoxification systems can cause greater harm by preventing children from metabolizing hazardous compounds into less toxic components, or protect children by limiting the absorption of hazardous toxins. During the growth and development of the respiratory systems, there are specific periods during which toxic exposures can interrupt normal development, causing long-term damage to the children. नेक्स्ट ये दिखाया हुआ है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज. क्या नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं पोल्यूशन के. नेक्स्ट है रूट ऑफ एक्सपोजर्स. किन रूट्स के ज़रिए एक्सपोज हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड.
In utero, the placental transport of some compounds like lead exposes fetus to concentrations of toxicants similar to those of the mother. In infants, second, infants are exposed through inhalation, breast milk, and dermal absorption to the more exposure. Dermal absorption Dermal absorption is the transport of chemicals from the outer surface of the skin both into the skin and into the circulation. इसके अलावा नॉन न्यूट्रिटिव इंजेक्शन, एंडोजीनस एक्सपोजर्स एंड ट्रांसप्लेसेंटल एक्सपोजर्स. एंडोजीनस एक्सपोजर में क्या होता है? व्हेन टॉक्सिन्स आर स्टोर्ड इन द टिश्यूज आर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस सच एज ईटिंग डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और calcium deficiency. Transplanted exposure through breast milk and most non-nutritive injection are unique to the children. इसके बाद है exposure assessment. It seeks to determine the concentration of pollutants a child comes into contact with and the duration for which the contact occurs. कि कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए कॉन्टैक्ट होता है. Exposure can be measured by two ways: direct measurement of exposure, continuous measurement of exposure. Direct measurement of exposures are used to quantify the effects of one or more pollutants on the respiratory health of the human, while continuous measurement of exposure to air pollutants is the gold standard for exposure assessment. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन चिल्ड्रन दिखाए गए हैं. ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है, लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है, इसके अलावा हार्ट पे. ब्रेन में क्या करते हैं? ये स्टंट कर देने हैं ब्रेन की ग्रोथ को. इसके अलावा ये क्या करते हैं? कोग्निटिव एबिलिटी को भी इम्पेक्ट करते हैं. लंग्स में दे कैन ट्रिगर एस्थमा. हार्ट में क्या कर सकते हैं? ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज काज कर सकते हैं. हेल्थ इफेक्ट्स इन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. क्या इफेक्ट्स एयर पोल्यूशन के होते हैं? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हमारी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ लंग को इफेक्ट कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये कर सकते हैं इफेक्ट, एस्थमा काज कर सकते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस काज कर सकते हैं, और इसके अलावा ये दे कैन आल्सो काज कैंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स. The short-term respiratory effects of air pollution are well studied. जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं वो वेल स्टडीड हैं. सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ एंड विजिंग हो सकती है. ये हो सकती है O3 ओजोन की वजह से. पार्टिकुलेट मैटर कैन काज नोज एंड थ्रोट इरिटेशन. PM पार्टिकुलेट मैटर नोज एंड थ्रोट इरिटेशन काज कर सकता है. ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड कफ हो सकती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से. NO2 एंड NOx कैन काज इरिटेशन टू द म्यूकोसा ऑफ नोज एंड थ्रोट. इसके अलावा अगर हम बेंजीन की हाई डोज लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें इरिटेशन टू द म्यूकोसा ऑफ नोज एंड थ्रोट हो सकती है. ब्यूटाडाइन कैन काज कफिंग, इरिटेशन टू द लंग्स एंड नेजल पैसेजेस. Fungal spores and pollutants from biological sources have been reported to cause rhinitis and hypersensitivity pneumonitis. Rhinitis क्या है? It is the inflammation and swelling of the mucous membrane of the nose. जबकि hypersensitivity pneumonitis क्या है? ये भी इन्फ्लेमेशन है. ये इन्फ्लेमेशन है ऑफ एल्यूलाई की और ब्रोनक्यूल्स की विद इन द लंग्स. जबकि राइनाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज की इन्फ्लेमेशन है. नेक्स्ट है ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट करते हैं. मैटरनल एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल तंबाकू स्मोक हैव बीन पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योर बर्थ. इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द पुअर ग्रोथ ऑफ अ fetus while in mother's womb. Similarly, they have negative respiratory effects at any stage of gestation. डेवलपमेंटल ससेप्टिबिलिटी, एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक पोल्यूशन जो है ना उसके नेगेटिव रिस्पिरेटरी इफेक्ट्स होते हैं. इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ होती है. इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ कैन काज लोअर लंग फंक्शनिंग एंड पुअर रिस्पिरेटरी आउटकम्स इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. पैटर्नल एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इज एसोसिएटेड विद द इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ. उसके अलावा रिडक्शन हो सकती है इन सोमैटिक एंड स्केलेटल ग्रोथ में. फ्रीक्वेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काज हो सकते हैं. एक्सपोजर टू एम्बियंट एयर पोल्यूशन मतलब आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड इंडोर बायोमास फ्यूल्स
combustion during childhood may reduce somatic and skeletal growth. लास्ट वन frequent respiratory infections काज हो सकते हैं इसकी वजह से. नो एस्थमा. एस्थमा क्या है? सबसे पहले एस्थमा इज़ अ कंडीशन जिसमें हमारी जो एयरवेज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा म्यूकस की प्रोडक्शन होती है. एस्थमा इज exacerbated by traffic pollution. Traffic pollution exacerbates asthma, but it cannot develop asthma. मतलब जो ट्रैफिक पोल्यूशन है वो एस्थमा को इंक्रीज तो कर सकती है, एग्जासरबेट्स तो कर सकती है, बट इसे काज नहीं कर सकती. The exposure to the microorganisms in damp buildings can exacerbate the symptoms of asthma and respiratory symptoms, and they can also cause the development of asthma. Microorganism जो है वो एस्थमा को develop भी कर सकते हैं. Genetic and epigenetic factors. Genetic and epigenetic factors play an important role in the initiation of asthma. बहुत से ज़रिए से वो अस्थमा को इनिशिएशन कर सकते हैं, जिनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द रिस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अलावा हमारी एलर्जेंस से हमारी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन के ज़रिए. 3 तरीके से मतलब वो क्या कर सकते हैं, अस्थमा की इनिशिएशन में रोल प्ले कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, इंक्रीजिंग सेंसिटाइजेशन टू एलर्जेंस और इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय इन्फ्लेमेशन. लास्ट वन है एक्सपोजर टू ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन. जब ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है ना अर्ली चाइल्डहुड में, तो उससे भी अस्थमा की जो है रिस्क वो इंक्रीज कर जाता है. A meta-analysis by Pio and colleagues found no statistically significant associations between the risk of asthma in children and exposure to biomass fuel when compared to cleaner fuel. नेक्स्ट है कैंसर. कैंसर सबसे पहले क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स है. इसमें गैसोलीन एग्जॉस्ट, सम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन ब्लैक, styrene and asphalt are classified as group 2b carcinogens. Indoor combustion of biomass fuels, particularly wood, causes lung cancer in the human. High temperature frying practice, particularly common in East Asia, was classified as group 2a carcinogens. इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज characterized by long term breathing problems and poor airflow. ये क्या कर सकती है? पुअर अर्ली लाइफ लंग फंक्शनिंग कर सकती है, रिस्पिरेटरी इलनेस काज कर सकती है, अर्ली लाइफ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एस्थमा एंड विजिंग काज कर सकती है. इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है? इट इज़ एन इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग अ पार्टिकुलर डिजीज बेस्ड ऑन पर्सनस जेनेटिक मेकअप. Childhood disadvantage factors. In the European Community Respiratory Health Survey, childhood disadvantage factors include parental smoking during early life and childhood asthma. इनकी वजह से अर्ली लाइफ में पेरेंटल स्मोकिंग हो जाए या चाइल्डहुड में एस्थमा हो जाए, इसकी वजह से COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिमिलर टू अ पर्सन हु इज स्मोकिंग. बायोमास फ्यूल एक्सपोजर. जो बायोमास फ्यूल है इंक्रीज फिब्रोसिस इन लंग्स, parenchyma and small airways, and they can cause a damage which is different from damage caused by cigarette smoking. ये भी कैंसर का है. कैंसर में और क्या क्या चीज़ें काज? केमिकल्स ऑफ एयर पोल्यूशन विच में काज कैंसर. इसके अलावा इसमें शामिल है बेंजीन, बेंजोल, पायरीन, एस्बेस्टस, फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंड हैंड स्मोक विच आर नोन एज ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस. पहले ग्रुप 2b और ग्रुप 2b के बारे में किया था. ये है ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस. डीजल फ्यूल एग्जॉस्ट, सम पीएच. पीएच के हैं? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, 1,3-butadiene and trichloroethylene have been classified as group 2a carcinogens. एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक. सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है? जब कोई दूसरा स्मोकिंग कर रहा है उसके पास बैठे हो तो उसे कहते हैं. डीजल एग्जॉस्ट एंड गैसोलीन एग्जॉस्ट हैव बीन एसोसिएटेड विद सेवरल नॉन रिस्पिरेटरी चाइल्डहुड कैंसर्स. इन पार्टिकुलर ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या है? ब्लड कैंसर caused by rise in number of white blood cells in our body. Lymphoma
ये भी ब्लड कैंसर है। इसमें ऐसे होता है कि ये सिर्फ इफेक्ट करता है हमारे लिम्फ नोड्स को, जबकि ल्यूकीमिया ये भी ब्लड कैंसर है, ये इफेक्ट करता है ब्लड को और बोन मैरो को। ब्रेन ट्यूमर्स, विल्म्स ट्यूमर्स, ये ट्यूमर क्या कहते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ किडनी कैंसर दैट प्राइमरीली डेवलप्स इन चिल्ड्रन। एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, दिस डिजीज प्रोग्रेसिस। एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया की डिजीज तब रैपिडली और प्रोग्रेस करती है और क्या काज करती है, बनाती है इमेच्योर ब्लड सेल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर्स। इसका कंक्लूजन, सिग्निफिकेंट गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ चाइल्डहुड एयर पोल्यूशन एक्सपोजर्स plays on the important development of respiratory diseases. It helps it need to understand the how need to understand how exposures occurring during the periods of rapid lung development. Thank you.